جب میں نے اس سے بات کی تو اس نے بولا بھی اس طرح یہ تو لڑکے ہیں، ایسے ہے ویسے، آپ نے اب چیزیں دے تو دی ہیں پر آپ کو چیزیں واپس نہیں ملیں گی۔ کتنے تولے کا تھا؟ وہ جو ٹوٹل تھا نا وہ میرا تھا 7 تولے تھا۔ میں نے فراز سے بولا، فراز نے مجھے کہا کہ پہلے تم مجھے اپنی ویڈیوز بھیجو، تم مجھے اپنی وہ بھیجو گی، میں تمہیں تمہاری چیزیں واپس کر دوں گا۔ سب انسپیکٹر ہے سہیل، اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی۔ ان لوگوں نے اس کے بعد اتنا مجھے بلیک میل کیا ہے کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں میں نے 3 دفعہ خودکشی کی ہے۔ السلام علیکم، آپ ٹی وی سے میں ہوں فیصل خان سوری، میرے ساتھ موجود ہیں۔ یہ انتہائی عجیب و غریب سا واقعہ پیش آیا ہے کہ سائرہ کے ساتھ فیس بک پہ ایک لڑکا لڑکی بن کے دوستی کرتا ہے اور پھر ان کو ورغلاتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ میں تمہاری اب بیسٹ فرینڈ بن چکا ہوں، اور پھر بعد میں ان سے کچھ پیسوں کی ڈیمانڈ کرتا ہے اور یہ ان کو کچھ زیورات دے دیتی ہیں۔ دین وہ ان کو بلیک میل کرنا شروع کرتا ہے اور ان سے نازیبا ویڈیوز منگواتا ہے۔ یہ سارا معاملہ کیا ہے انہی سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی عزت کو محفوظ کرنے کے لیے ہم نے ان کا فیس بلر کر رکھا ہے، دیٹس وائی آپ کو ان کا چہرہ نظر نہیں آئے گا، لیکن آپ سائٹ پہ ایف آئی آر چلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ میم بتائیے گا کہ کیا معاملہ پیش آیا، کس طرح سے دوستی ہوئی آپ کی فیس بک پہ؟ میری پچھلے رمضان سے پہلے کی بات ہے، 1 مہینہ پہلے کی بات ہے کہ میری فیس بک پہ دوست بن کے مجھ سے بات کی ہے، اور میں بھی دوست بن کے بات کرتی رہی ہوں، جیسے کہ میسیج ہوتے ہیں، بات چیت ہم لوگ کرتے ہیں۔ کیا نام تھا اس کا؟ حسام احسن، اور جس سے میری بات ہوتی تھی وہ فراز راجپوت ہے، اور اس نے بات کی ہے، بات کرتا رہے تو اس کے بعد جب مجھے ان لوگوں نے اتنا مجھے بولا بھی میری امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے تو مجھے اس کے لیے کچھ پیسے چاہیے، تو میں نے بولا کہ میرے ہسبینڈ تو مجھے پیسے نہیں دیتے ہیں، مجھے منتھلی خرچہ بھی نہیں دیتے، تو اس نے کہا کہ چلو تمہارے پاس اگر پیسے نہیں ہیں تو کچھ زیورات تو موجود ہوں گے۔ میں نے بولا ہاں میرے پاس زیورات موجود ہیں۔ اس نے مجھ سے زیور مانگا، اس نے مجھے بولا بھی اس طرح 15 دن کی مانت پہ دے دو، میں کلمہ پڑھ کے قسم اٹھاتا ہوں اور قرآن پاک پہ حلف اٹھاتا ہوں۔ اس نے قرآن پاک پہ حلف اٹھایا ہے، کلمہ پڑھا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ مجھ پہ یقین کر کے مجھے چیزیں دے دو۔ میں نے اس کو چیزیں دے دی۔ اس نے بولا بھی شام کو اس طرح ایک میرا فرینڈ آئے گا مجھ سے آ کے تو چیزیں لے کے چلا جائے گا۔ فرینڈ کا نام کیا تھا؟ حسام احسن، وہ فیصل آباد کا رہنے والا ہے اور یہاں پہ کویلری گراؤنڈ میں وہ رہ کے گیا ہے۔ میں نے شام کو وہ آیا ہے، اس نے مجھے میسیج کیا ہے کہ مجھے چیزوں کے لیے بھیجا ہے تو آپ مجھے چیزیں دے دیں، دین میں نے اس کو چیزیں دے دی۔ میں گئی ہوں، میں نے اس کو جا کے اپنے ہاتھوں سے چیزیں دی ہیں۔ اس نے بلو اور وائٹ کلر کی شلوار قمیض پہنی تھی۔ کیا چیزیں دی تھی؟ میں نے اس کو زیور تھا جس میں دو سیٹ تھے میرے، اور اس میں کنگن تھے، رنگز تھیں، اور کافی چیزیں تھیں اس میں۔ کتنے تولے کا تھا؟ وہ 8 تولے، وہ جو ٹوٹل تھا نا وہ میرا تھا 7 تولے تھا، 7 تولے وہ میرا تھا، تو لے کے وہ چلا گیا ہے۔ اگلے دن جو مجھ سے لڑکا لے کے گیا نا اس نے مجھے فیس بک پہ مجھے ریکویسٹ بھیجی ہے۔ اس کو کیسے پتا کہ میرا نام ہے، میں فیس بک پہ میری مطلب کہ یہ آئی ڈی ہے، اس کو کیسے پتا چلا؟ اس نے تو جسٹ مجھ سے واٹس ایپ پہ بات کرنی تھی، بات کر کے مجھ سے چیزیں لے کے چلا گیا۔ اس نے مجھ سے کیوں بات کرنی چاہی؟ جب میں نے اس سے بات کی تو اس نے بولا بھی اس طرح یہ تو لڑکے ہیں، ایسے ہے ویسے، آپ نے اب چیزیں دے تو دی ہیں پر آپ کو چیزیں واپس نہیں ملیں گی۔ میں نے رونا پٹنا شروع کیا، میں نے تڑلے منتیں شروع کی۔ میں نے جب مجھے یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ یہ لڑکا فراز راجپوت نکل آیا، مجھے ساری اصلیت پتہ چل گئی تھی۔ میں نے ان کے ترلے منتیں شروع کی بھی مجھے میری چیزیں دے دو، میرا تو گھر اجڑ جائے گا۔ میرے ہسبینڈ کو پتہ چلا، اس نے مجھے ڈیورس دے دینی ہے۔ انہوں نے مجھے لارے پہ لارا، اچھا کل اگلے مہینے پیسے ملیں گے، پراپرٹی سیل ہونی ہے، میں ایسے ہوں، میں ویسے ہوں۔ میں نے سب باتیں بہت کچھ میں نے سنتی رہی ہوں ان کی۔ اس کے بعد حسام سے میں نے کہا کہ وہ کہتا تھا کہ میں جے ایس بینک میں کام کرتا ہوں، تمہارا سارا گولڈ وہاں پہ رکھا ہے ہم لوگوں نے، اور وہ جو تمہارا گولڈ ہے نا وہ پیسے دیں گے تو تمہیں تمہارا گولڈ واپس مل جائے گا۔ میرے پاس پیسے تو نہیں تھے کہ میں 6 لاکھ 10 لاکھ میں کہاں سے دے کے تو میں اپنا زیور واپس لوں۔ میں نے کہا مجھے میری چیزیں واپس دے دو، میں تم لوگ کے پاؤں پڑتی ہوں، ہاتھ جوڑتی ہوں، میری 2 بچیاں ہیں۔ ان لوگوں نے میری بات نہیں سنی۔ انہوں نے کہا بھی، حسام نے مجھے بولا کہ تم ایک اچھی لڑکی ہو، گھریلو ہو، اور تمہارا گھر بچانے کے لیے میں پیسے بھرنے کو تیار ہوں۔ اس نے 6 لاکھ مجھے بولا کہ اتنے پیسے بھرنے ہیں، میں بھر دیتا ہوں، باقی پیسے تم بھرو۔ میں نے کہا میرے پاس اب کچھ بھی نہیں ہے کہ میں تم لوگوں کو دے دوں۔ اس نے کہا تمہارے پاس کوئی چھوٹی موٹی گولڈ کی چیزیں بھی نہیں ہیں؟ میں نے کہا صرف ایک میرے پاس ایئرنگز ہیں جو میں پہنتی ہوں اور ایک چین ہے۔ وہ کہتے کہ تم مجھے وہ بھی دے دو،
मैं बैंक में रखूँगा, वो लाख तक तो वो बिक जाएंगी क्योंकि गोल्ड का रेट बहुत चढ़ा हुआ है। मैंने वो भी उसको दिया, उसने मुझसे लिया भी, मैंने तुम्हारा 4 लाख भर दिया है, तुम 1 लाख मुझे नहीं दे सकती हो ना, तुम ये भी दे दो। वो 2 दिन बाद आया, फैसलाबाद से आया, उसको उसी जगह जहाँ मैंने पहले चीज़ें दी थी वहीं पे मैंने उसको लॉकेट और वो इयरिंग्स भी दे दिए कि शायद मुझे मेरी चीज़ें वापस मिल जाएं। ये इंसान अच्छा कह रहा है कि मैं अच्छा हूँ, तुम्हारी इज्जत बचा दूंगा, तुम्हारे घर वाले तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। मैंने जब इसको ये भी चीज़ें दे दी तो उसके बाद वो कहता है भी मेरे हालात इतने ख़राब हैं, मैं ऐसे हूँ वैसे हूँ, सारी बातें खुलती गई हैं। और इवन कि जब मैंने फराज से बोला ना, उसने मुझे बोला कि तुम फराज से बोलो कि तुम्हारी चीज़ें वापस करें। मैंने फराज से बोला, फराज ने मुझे कहा कि पहले तुम मुझे अपनी वीडियोस भेजो, न्यूड वीडियोस, तो मुझे अपनी वो भेजोगी, मैं तुम्हें तुम्हारी चीज़ें वापस कर दूंगा। उसने मुझे बकायदा, मेरे पास एक एक चीज़ का सबूत मौजूद है मेरे मोबाइल में, और मैंने अपने शोहर को भी बताया। इन्होंने मुझे इतना ब्लैकमेल किया कि इन्होंने कहा कि तुम खुदकुशी करो, तुम खुदकुशी करके मर जाओ, अपनी बच्चियों को जहर दे दो। मैंने खुदकुशी की, इस बात का हसाम को पता चल गया, तो मैंने हसाम को बोला कि मैं खुदकुशी कर रही हूँ, अगर मेरे हस्बैंड को पता चलता है तो कल से तुम लोग इस चीज़ के ज़िम्मेदार हो। मेरे हस्बैंड तुम लोग को पूछेंगे, मेरे पास हर चीज़ का सबूत मौजूद है। उसने कहा भी तुम खुदकुशी ना करो तो मुझसे माफ़ी मांगो कि तुमने जो मेरे खिलाफ हसाम को बातें कही हैं ना, मैंने फराज को गालियाँ दी कि ये मेरी चीज़ें लेके गया है। मुझे जब इसकी सच्चाई पता चली कि ये तो 2 नंबर है, ये लड़कियों को लूटता है, खुद की वीडियोस दिखाता है, लूटता है। जब मैंने उससे बातें बोले, उसने मुझे कहा तुम खुदकुशी करो, उसने मुझे कहा तुम अपनी वीडियोस भेजो, और वीडियोस भी ऐसी होनी चाहिए कि तुम्हारा चेहरा बाकायदा नज़र आए। और मैंने जब उसको ये वीडियोस नहीं भेजी, उसने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। आपने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट भी करवाई, क्या रिस्पॉन्स आया वहाँ से? मैंने अपने शोहर को सारी बातें बताई। जब मैंने खुदकुशी की, मेरे शोहर को पता चला, उन्होंने अगले दिन ही जाके, हम लोगों ने 4-5 दिन बाद हम लोगों ने जाके थाने में रिपोर्ट करवाई है। पहले तो उन लोगों ने हमारी बात ही नहीं सुनी। वो कहते हैं ऐसी कौन सी इसको बात कही थी, इसको बूटी सुंघाई थी कि इसने 8 तोले जेवर दे दिया, हमें तो कोई 1 रुपया नहीं देता। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है। तो उसने कहा भी आज आखिरी दिन है, मैंने पर्चा देना है, आप बात क्लियर करें आके। मैंने वहाँ पे जाके किया। वो कहता है अगर तुम्हारा इससे कोई चक्कर है, मुलाकातें हुई हैं, मेरे सामने उसने हसाम को फ़ोन किया है। वो कहता है मेरे पास तो इसके खिलाफ सबूत है, मेरे पास तो इसके खिलाफ हर चीज़ मौजूद है, मैं तो लेके ही नहीं गया, इसने तो मुझे दिया ही नहीं, इसने तो फराज को दिया। मैं मानती हूँ मैंने फराज के कहने पे मैंने इसको दिया है, ये लेके तो गया ना चीज़ें। सब इंस्पेक्टर है सुहेल, उसने मेरे साथ बदतमीज़ी की। उसने मुझे बोला जी तुम्हारा उसके साथ कोई चक्कर होगा, अगर कोई बात है तो मुझे बताओ, आजकल तो ऐसे है वैसे है। ये बड़ी उसने बदतमीज़ी से बात की है कि मैं वहाँ पे रो पड़ी हूँ, और मैंने बाहर निकल के कहा मैंने नहीं केस लड़ना, मैं अपना केस वापस ले लेती हूँ। कुछ अरसा गुजरा है, मैंने वहाँ पे आईजी के दफ्तर भी, हम लोगों ने कंप्लेंट सेंटर भी कॉल किया 1787 पे। उन लोगों ने फिर हम लोगों को बुलाया, मेरे हस्बैंड गए वहाँ पे। उन लोगों ने बोला जी एसएचओ के पास आप जाएं, आप लोगों की हम लोग बात करेंगे। एसएचओ के पास गए हैं, उसके सामने सुहेल ने हसाम को फ़ोन किया है। हुसाम कहता है कि मैं सुहेल को आके मिल गया हूँ। कौन सा मिल के गया है? मैंने जुर्म किया नहीं है, और मुझे रोज़ बुलाते हैं, मुझसे बदतमीज़ी करते हैं, सवाल पूछते हैं, गलत बात पूछते हैं। मेरी तो आपसे इतनी है, अगर मेरा करैक्टर लेस है, अगर मैं गलत इंसान हूँ, वो मेरा फेल है। मैंने जो किया वो मेरा मामला है, मेरा किसी के साथ कोई लेन देन नहीं है कि मेरा करैक्टर कैसा है। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहूँगी कि मेरी वो चीज़ें लेके गया है, आप उससे क्यों नहीं पूछते? ऐसी कौन सी वो बातें करता था वो शख्स जिसने आपको वर्गलाया कि आप उसकी बातों में आ गई? आप यकीन करें कि मैं इस बात पे ना, मैं सिर्फ ये बात कहूँगी कि मैं सच यही कहूँगी, कलमा पढ़ने को मैं इस बात पे तैयार हूँ कि उसने मुझे कहा कि मेरी अम्मी की तबीयत ख़राब है, मुझे 15 दिन की मानत पे दे दो। और कुरान पाक पे उसने हल्फ उठाया, कलमा पढ़ा। उसने कहा कि मैसेज पे लिखा कि मैं कलमा पढ़ता हूँ, मैं कुरान पाक पे हल्फ उठाता हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारी चीज़ें वापस कर दूँगा। चले ठीक है, मैं मानती हूँ वो फराज लेके गया है। मेरी फराज से जो भी बात हुई बाद में, हसाम को कैसे पता है? अब मुझे ये बताएं। पूरा एक गैंग है। ये पूरा एक गैंग है। मुझे अब तक ये यकीन हो चुका हुआ है कि हसाम ही फराज की आईडी यूज़ करके मुझे ये हरकतें कर रहा है। आप मुझे एक बात बताएं, मैंने अगर फराज को चीज़ें दी हैं, मेरा ताल्लुक अगर फराज के साथ भी है, मुझे बताएं 3 महीने में मैंने अपना ताल्लुक बना लिया। अगर मेरा उनके साथ गलत ताल्लुक होता, मैं उनसे कभी अपनी चीज़ें मांगती?
उन लोगों ने मुझसे मेरी चीज़ें ली हैं, ठीक है। उसके बाद इल्ज़ाम लगा रहे हैं हमसे 20 दफ़ा मिलने आई है। कहाँ मैं मिलने गई हूँ? मुझे सबूत दें कि हमसे इधर मिलने आई है 20 दिन, मैं 20 दफ़ा मिलने आई है, मैं मानने को तैयार हूँ। आपने उनको कोई अपनी पिक्स वगैरह सेंड नहीं की? उन्होंने जब मुझसे वीडियोस मांगनी शुरू की, आपको पता है कि जब एक लड़की से बात कर रही होती है तो इतना तो बात कर रही होती है कि ये देखो मैं इस जगह पे गई थी, मैंने ये सैर करने गई, यहाँ पे पिक ली है, ये देखो ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे हस्बैंड हैं। इन्होंने मेरे हस्बैंड के फेसबुक पे लड़कियों के नाम से रिक्वेस्टें भेजनी शुरू कर दी। इन लोगों ने उसके बाद इतना मुझे ब्लैकमेल किया है कि मैं आपको बता रही हूँ, मैंने 3 दफ़ा खुदकुशी की है। आप नहीं समझती जो आपका शौहर है वो इतना अगर गैरतमंद होता तो वो आपको कत्ल कर देता, लेकिन उसने इतना बर्दाश्त किया ये सारा मामला कि उस शख्स ने आपको इज्जत दी, आपको वही मकाम दिया, अपने साथ रखा। समझती हैं कि शौहर बेस्ट रहा है आपके साथ? मैं तो अपनी ज़िंदगी में, मेरी जितनी उम्र गुजर चुकी है, मैं हर बेटी को, हर बहन को, हर बैठी घर में औरत को ये अपील करूँगी कि मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ, फेसबुक पे मत किसी से बात करें, मत किसी से राब्ता करें। शोहर सब कुछ है, भाई सब कुछ है, माँ बाप सब कुछ है। मुझसे जितनी बड़ी गलती हुई मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मैं मानती हूँ, मैं हर जगह पे खड़ी होके कहती हूँ मैंने दिया सोना, पर मैंने जिस नीयत से दिया वो अल्लाह जानता है या मैं जानती हूँ। बिल्कुल इस तरह के बहुत से वाक़यात पेश आते हैं, चूँकि आजकल सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत आम हो चुका है, ख़ासकर फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और ब्ला ब्ला इस तरह की ऐप्स हैं जिस पे बहुत ज़्यादा लड़कियां लड़कों के साथ बात करती हैं और लड़के जानबूझ के लड़कियों को रिक्वेस्ट सेंड करते हैं और दोस्तियां करते हैं। कहीं ना कहीं लड़की गलत ज़रूर होती है, लड़का ज़रूर पत्थर मारता है, लेकिन लड़की का ये काम नहीं है कि वो लड़की आगे से रिस्पॉन्स करे। मैंने हमेशा इसी चीज़ पे आवाज़ उठाई कि बराए मेहरबानी लड़का गलत है तो लड़की अच्छी बन जाए। हम अगर दोनों तरफ देखें तो दोनों तरफ अगर गलत हो जाएंगे तो मुआशरा जलीलो ख्वार हो जाएगा, मुआशरा डूब जाएगा। अगर अभी तक भी मुआशरा बचा हुआ है तो औरत की वजह से बचा हुआ है। मैं इनके शोहर का सल्यूट पेश करता हूं कि इनके शोहर ने ना इन पे तशद्दुद किया, ना घर से निकाला, ना तलाक दी, ना इनके ससुराल भेजा, भाई कुछ नहीं किया। यार इतना रहम दिल, इतना नरम दिल, इतना अच्छा दिल शौहर नहीं मिलता। मेरी बहनें बेटियां जो सुन रही हैं उनके लिए ये पैगाम है कि भाई आप खुद को ठीक करोगे, मुआशरा खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। आपका भाई आप पे क्यों जुल्म करेगा, क्यों तशद्दुद करेगा अगर आप कोई गलत हरकत नहीं करेंगी? मर्द पागल थोड़ी है, मर्द जंगली थोड़ी है, मर्द किसी जंगल से थोड़ी पैदा हुआ है। तो भाई मर्द को ब्लेम करना बंद करें। मेरी औरत अच्छी है, मेरी बेटी अच्छी है, मेरी बहन अच्छी है, मेरी माँ अच्छी है, तो यकीन मानिए मर्द बहुत प्यार करने वाली चीज़ है। मर्द पे रहम कीजिए, मर्द के साथ वफा कीजिए। जो मर्द आपके नज़दीक है, आपका शौहर है, आपका भाई है, आपका बाप है, अगर आप उसके साथ सिंसियर हैं तो सब कुछ है आपके साथ। लेकिन अगर आप बेवफाई करेंगे तो मर्द आपका कभी नहीं बनेगा। मर्द सब कुछ माफ कर सकता है लेकिन बेवफाई माफ नहीं कर सकता, और औरत अगर बेवफाई कर दे तो मर्द मर जाता है। सोचिए, समझिए, तवज्जो दीजिए। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। अल्लाह ने